Assalamu alaikum students and welcome to our video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and today we are going to start our new topic, that is theoretical framework and hypothesis development. So what are the objectives of our this topic? We will discuss the need for a theoretical framework in a deductive research. We will describe four main types of variables and identify and labels the variables associated with any given situations. Develop a theoretical framework that includes all the relevant components. Develop a set of hypotheses to be tested. Demonstrate awareness of the role of the managers in development of a theoretical framework. So let's recall the hypothetical deductive research method which we discussed in an earlier lecture. Why we are discussing this hypothetical deductive research process? Because the theoretical framework and the hypothesis that we are going to develop are more related to this research process. Recall, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड और रिगरस अप्रोच है जिसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं. तो ये जो साइंटिफिक मेथड है ये बेसिकली इसका ज़्यादा फोकस अर्लियर रिसर्च में जो नेचुरल साइंसेस हैं उसके ऊपर ज़्यादा था और जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं उसमें साइंटिफिक रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. वैसे तो इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये कि सोशल साइंसेज और बिजनेस रिसर्च में भी इस नेचुरल साइंसेज अप्रोच को बहुत ज़्यादा फोकस दी गई है और इसको पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, जिसमें ये कि आप हर चीज़ को एक बड़े साइंटिफिक तरीके से परफॉर्म करते हैं जिसमें रिसर्चर की अपनी इंटरफेरेंस कम से कम होती है, उसकी अपनी बायसनेस कम से कम होती है. तो ये जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड है ये एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने इसको प्रेजेंट किया था, पॉपुलराइज किया था. तो ये एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच है और ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की जाती है आम तौर पे बिजनेस और सोशल साइंसेस रिसर्च में. इसीलिए यहाँ पे हमारा फोकस होगा और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द 7 स्टेप्स ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च प्रोसेस? Number 1, identify a broad problem area. Number 2, define the problem statement, and we have discussed these two processes in the previous lectures. Then develop hypothesis, that is something that we are going to discuss in this particular lecture. And then determine the measures, data collection, data analysis and interpretation of data. So these are very simplified 7 steps. Of course there are more things that may be included in within these steps. So moving forward, so again recall this scientific research process flowchart, right? And we are at stage number 4 right now. In the previous lectures we discussed the problem definition and there was one addition of literature review over here, which we call the critical literature review. Although literature survey can also be part of preliminary data gathering, but at this point when we do the literature review, so we get more clear about many things about over the variables. So this development of theoretical framework is actually related to literature review. ये ना आप सोचें कि लिटरेचर रिव्यू एक सेपरेट पार्ट था. एक्चुअली आप इसको पिछले लेक्चर्स जिसमें हमने लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस किया था उसकी कंटिन्यूटी में ही समझें, क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और वेरिएबल्स जो हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली सारे के सारे लिटरेचर में से ही आते हैं और इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. सो एक दफ़ा फिर आप इसको देख लें और इसको समझें कि लिटरेचर रिव्यू एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आर इंटरकनेक्टेड. What is a theoretical framework? How we can define it? If I can read out the definition for you, a theoretical framework represents your beliefs on certain phenomena, on how certain phenomena that can be a variable or a concept are related to each other.
So that gives rise to a model and an explanation on why you believe that these variables are associated to each other, that is a theory. Recall in our previous lecture we discussed that there are certain variables or concepts, right? And these variables and concepts can be related to each other, right? And we can represent them in a form of a model, something like this variable can be related to another variable, right? Variable 2 here. So we say that when these variables are related, so this is a very simplified model that variable 1 is variable related to variable 2, and an explanation on why you believe that these variables are associated. So this explanation, from where we get explanation, is basically we get from a theory. And if you recall, the theory is basically explanation of how certain things in in this maybe universe are associated with each other, how certain concepts are associated with each other, how motivation arise, how satisfaction arise, how different economics theories give rise to explanation to different phenomena, right? So what are the basic steps to develop a framework? Number one, we need to identify and label the variables correctly. Number two, we need to state the relationships among the variables. Of course, that we will discuss how we can state the relationship using the hypothesis. And number three, we need to explain how or why you expect these relationships. Again, if you recall the previous slide, this is how we do with the use of some theory. In the research paper and thesis, theoretical framework and hypothesis can be combined with literature review, making theoretical framework and hypothesis the final part of the literature review. So what happens that whenever you are doing a write-up, your literature review and your development of theoretical framework and hypothesis are interconnected, and you will be able to understand this particular um perspective in a better detail if you read out more and more research papers and research theses that are already published. Again, this is an overview how you can convert a theory. So if you recall from previous slides, हमने ये जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल, ये JDR की जो थ्योरी थी, इसको हमने डिस्कस किया था, ये JDR की थ्योरी को, ठीक है। और हमने कहा था कि जी ये एक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट वेरिएबल्स, एक जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इस ही जनरलाइज्ड मॉडल को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना स्पेसिफिक मॉडल बना सकते हैं जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब डिमांड्स हैं, उन जॉब डिमांड्स को इन डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया गया है। ये रिसर्चर ने ये डायमेंशंस अब जिस मे बी इंडस्ट्री पे वो काम कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसने ये फील किया कि ये वाले डायमेंशंस वहाँ पे जॉब डिमांड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको उसने रिलेट किया एग्जॉस्शन के साथ, इस तरह जॉब रिसोर्सेज है। अब अगर आप देखें तो ये एक बड़ा जनरलाइज्ड मॉडल है जिसमें बहुत सारे रिलेशनशिप हैं। हमने अपनी रिसर्च को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक इन अ सेंस कि हमने उसका एक थोड़ा सा पोर्शन अडॉप्ट करके अपनी रिसर्च के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उस मॉडल में से बना लिया। तो जो एक्सप्लेनेशंस हमें ऑलरेडी इस मॉडल के हवाले से इन द लिटरेचर वी विल फाइंड, तो सेम explanations we can use to hypothesize our own model, right? Now coming to the concept of variables, जो hypothetical deductive approach है उसके अंदर variables का बहुत important role है। और ये variables जो हैं ये constructs भी हो सकते हैं, ये definite concepts भी हो सकते हैं। Anything that changes value is a variable. So any concept or construct that varies or change in value, ठीक है। तो ये
वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में अगर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, यू विल फाइंड देयर प्लेंटी ऑफ वेरिएबल। अब जेंडर है जैसे, ठीक है, कॉमनली हम कहते हैं जी जेंडर इज़ बेसिकली इट कैन बी अ मेल और फीमेल, या और जेंडर की डेफिनेशन भी थर्ड जेंडर्स भी ला सकते हैं इसके अंदर। तो ये जेंडर जो है, अब देखें इसमें अगर हम बेसिक सिर्फ डेफिनेशन पे चलें मेल और फीमेल की भी, आप देखेंगे कि इसमें कम से कम दो वैल्यूज़ तो हैं, तो एक वैल्यू तो कांस्टेंट होता। अगर ये दो वैल्यूज़ हैं कि इट कैन बी आइदर मेल और फीमेल, और इवन वी हैव अ ट्रांसजेंडर समटाइम्स, आजकल बहुत ज़्यादा उस पर भी फोकस होता है कि इंक्लूड करना चाहिए। तो आप देखें तीन वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, इट इज़ अ वेरिएबल। सिमिलरली हार्ड वर्क, अब हार्ड वर्क, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, कोई कम हार्ड वर्क करता है, तो ये जो भी कंस्ट्रक्ट है इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और ये हम आगे जाके हमारा जो ऑपरेशनलाइजेशन का जो टॉपिक होगा जब हम मेजरमेंट्स में पढ़ेंगे, तो हम तब डिस्कस करेंगे कि इस हार्ड वर्क को हम अपनी एम्पेरिकल स्टडी के लिए, एम्पेरिकल स्टडी मीन ऐसी स्टडी जिसमें डाटा शामिल हो, उसके लिए हम क्या इसको किस तरीके से इसको डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, लेवल्स भी असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एजुकेशन। अब आप सोचें कि एजुकेशन क्या ये एक वेरिएबल है? बिल्कुल हो सकता है। एजुकेशन को अगर हम कहेंगे लेवल्स ऑफ एजुकेशन, जी एजुकेशनल लेवल्स, एजुकेशनल लेवल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है ये भी एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन लेवल, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि समवन हु इज़ नॉट एजुकेटेड और समवन हु हैज़ अ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन और अ मैट्रिक और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट और इवन पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी, तो इस तरह हम लेवल ऑफ एजुकेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। एंड वी विल डिस्कस दीज हाउ टू असाइन डिफरेंट वैल्यूज़ इन आवर मेजरमेंट सेक्शन। हियर वी आर कंसर्न ऑन टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितनी टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की। सो वी हैव dependent, independent, moderating, mediating, and we will also discuss some other types of variables such as control variables, control, and we can also have some variables which are called confounding variables. These confounding and control variables are actually not the mainstream type of variables. Four are the main type of variables, but they are also important in research. So independent variable or dependent variables. What are the dependent variable? It is a primary interest to the researcher. आप जब रिसर्च करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इन डेप्थ। वो प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी हो सकता है जो वेरिएट कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो प्रॉब्लम पोल्यूशन भी हो सकती है। सो एनी वेरिएबल दैट इज़ अ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, and it is the goal of the research project to understand, predict or explain the variability. The change in this variable is basically the dependent variable. आप जब रिसर्च कर रहे हैं और जिस वेरिएबल को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट वी हैव द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो हम ये सोचते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वजह से किसी दूसरे वेरिएबल में इफेक्ट हो रहा है। ये हमारी रिसर्च जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच है, बेसिकली उसका हमारा एक पर्पस होता है कि हम देखें कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट हो रहा है, तो जिस वेरिएबल की वजह से इफेक्ट हो रहा है वी कॉल दैट वेरिएबल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो it influences the dv in either positive or negative way. The variance means the change in the dv. जनरली हम डिपेंडेंट वेरिएबल को dv और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को iv कहते हैं, is accounted for by the iv. For example, hard work in preparation of exams, intellectual abilities, यानी आपकी जो abilities हैं, your intellectual abilities
they can be an IV for exam results. Here we will discuss few examples. अब आप देख सकते हैं कि मैनेजेरियल वैल्यूज और पावर डिस्टेंस, अब इस एग्जांपल में ये एक रिलेशनशिप दिखाई गई है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके अंदर उसने ये कहा है कि मैनेजेरियल वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और पावर डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली अब यहाँ पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है जिसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स, इस तरह कंपेटिटिव एडवांटेज। अब इसके बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉफिट्स एंड सेल्स, नॉन फाइनेंशियल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज। ये सारे के सारे फर्म परफॉर्मेंस के डायमेंशंस हैं। ये देखें फर्म परफॉर्मेंस के ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। फाइनेंशियल फर्म परफॉर्मेंस में हम उसको मेजर कर सकते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल कौन कौन सी है, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Here we have another example. An applied researcher wants to increase the performance of the organization. So increase क्या करना चाहता है, उसका variable of interest क्या है, performance of organization. तो यहाँ पे क्या है आपका dependent variable? What would be the dependent variable? So performance of organization. A marketing manager wonders why the recent advertisement strategy does not work. So क्या है यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, द एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, बिकॉज दे वांट टू नो दैट व्हाई द रीसेंट स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क। सो ये आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। Research studies indicate that successful new product development has an influence on the stock market price of the company. Influence on what? On the stock market price of the company. That is, the more successful the new product turns out to be, the higher will be the stock market price of the firm. So ये जो product success है ये आपका IV है और जो stock market price है वो आपकी DV है। Am I right? Yes, I am. Because हम जब अपनी real life situations में देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस पे affect कर रही है, तो हम वहीं से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट आर आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर आवर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर मैं आपको वो स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ी थी उसको दोबारा से गो थ्रू करें, दैट रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। दैट इज, द मोर सक्सेसफुल द न्यू प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी, द हायर विल बी द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म। Let me introduce you to a new concept. What is a moderator? Just like an IV and DV, a moderator is also a variable. It can be a qualitative variable. So what is a qualitative variable? That like gender, race, class. Generally, we call those variables qualitative, which have certain levels, certain discrete levels. Like gender can be male, gender can be female. Similarly, race, ethnic race जिसे हम कहते हैं, जो हम नस्ल कहते हैं या जात कहते हैं, ठीक है। इस तरह क्लास, सोशल स्टेटस, क्लास जिसे हम कहते हैं, तो ये सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स उनको हम कहते हैं जिनकी डिस्क्रीट लेवल्स नहीं होती, उनके अंदर वक्फों के साथ हम नंबर नहीं असाइन करते, हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस है। दिस द लेवल ऑफ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो होते हैं दे आर मोर और लेस कॉन्टिन्यूस। एनीवेज, आइदर इट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल और अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इट अफेक्ट्स द डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको इसके लिए अपनी
जो इमेजिनेशन है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप ये देखें कि देयर इज़ एन IV एंड DV, वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट, कि जी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है। अब मॉडरेटर क्या करता है कि इनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, पहले इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर देखते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू विद फ्यू एग्जांपल्स कि ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। The moderator is one that has a strong contingent effect on the independent dependent variable relationship। ठीक है, तो ये सिचुएशनल उसको अफेक्ट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को। The presence of the moderating variable modifies the original relationship between the independent and the dependent variable। How it does that? ये मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, the relationship between spending power and charity behavior is stronger for females than males। अब रिसर्च हुई और रिसर्च से ये पता चला कि जो आपकी स्पेंडिंग पावर है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, और जो आप चैरिटी में खर्च करते हैं, वो फीमेल में ज़्यादा है और मेल में कम है। अब देखिए, हम एक जर्नल रिसर्च करते हैं जिसमें हम फीमेल और मेल का डिफरेंस ना निकालते, तो हम एक रिलेशनशिप डिफाइन करते। हम कहते कि जी स्पेंडिंग पावर और चैरिटी बिहेवियर को हम इधर वाई एक्सिस पे रख लें, तो आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म्स आपको इस तरह समझ आ जाती है, जिसमें हम ग्राफ कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जिस तरह स्पेंडिंग पावर बढ़ती जाती है, लेट मी चेंज द पेन, कलर हम चेंज करते हैं, जिस तरह स्पेंडिंग पावर बढ़ती जाती है, इसी तरीके से चैरिटेबल बिहेवियर भी बढ़ता जा रहा है। ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, और इसका एक ग्रेडियंट भी है। ऑफ कोर्स, अगर आपको पता चले कि हर स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ में बनती है उसका एक ग्रेडियंट होता है, एक स्लोप होता है, जिसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक हो गया। अब जिसके पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा है, उसका चैरिटेबल बिहेवियर भी ज्यादा है। जिसके पास पैसा कम है, उसका चैरिटेबल बिहेवियर कम है। तो एक खास स्लोप से ये बढ़ता है। हो सकता है मैं कहूँ कि अगर आप 1 यूनिट स्पेंडिंग पावर बढ़ाएं, तो आपका चैरिटेबल बिहेवियर जो है वो 0.5 यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर। अब यहाँ पे हमने कोई मेल और फीमेल का अभी कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया और हमें ये पता चला कि जब हम ये ग्राफ मेल्स के लिए बनाएं तो उस ग्राफ का स्लोप थोड़ा है, और जब हम फीमेल के लिए बनाएं तो उस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि थोड़ा सा स्पेंडिंग पावर बढ़ने पे फीमेल का चैरिटेबल बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि उतना ही अगर मेल्स का बढ़े स्पेंडिंग पावर तो उनका चैरिटेबल बिहेवियर इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रिलेशनशिप है स्पेंडिंग पावर और चैरिटेबल बिहेवियर का, वो फीमेल के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेल के लिए कम स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या कहेंगे कि जेंडर इज अ मॉडरेटर इन दिस रिलेशनशिप।